So today we are going to start with the concepts and conventions of accounting. So in totality, we have got 9 concepts and 3 conventions. So I'm going to share the screen now. So let's see what are concepts and conventions based on which we prepare the accounts. Okay. Okay. So these are the accounting conventions and concepts that we are going to start. So let's start with the accounting concepts and accounting concepts. ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है that what is accounting concept. So accounting concept, that as the name itself suggests, it is an assumption. So just like any other body of knowledge, the way it has some assumptions based on which that theory can be proved to be true. Similarly, in accountancy also, we have some assumptions based on which the accounts are prepared. Now, these assumptions have been used from years before, like since we are using it from past many years for preparation of accounts, and by using these assumptions, the accounts that we are preparing is delivering the correct result which the users are using and making their respective decisions. So this ensures that the whatever assumptions that are existing right now are useful for the preparation of accounts, and it is also verifiable and relevant enough so that whatever data that is getting prepared by using these concepts is actually being used by the users, which are external and internal, and they are taking their respective decisions which are fetching them correct results, right? So let's read what is assumption written here. In order to make the accounting language convey the same meaning to all the people, to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement. These concepts provide a foundation for accounting process. No enterprise can prepare its financial statements without considering these basic concepts or assumptions. These concepts guides how transactions should be recorded and reported. Following may be treated as basic concepts or assumptions. Okay, so यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके पास, ये जो ऊपर गिवन है ये 3 और बाकी के ये 11, तो मान लेते हैं ये हमारे पास हो जा रहे हैं 6 7 8 9 10 रादर 11, एक मिनट, ये टोटल 11 है, 11 assumptions हैं जो हमको पढ़ने हैं। और ये 11 assumptions में से आप देखेंगे कि काफी सारे assumptions वो हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर. So it is going to be a revision of the concept that we have already covered. So let's just go through it and let's understand that based on what concepts or assumptions the accounts are prepared. Okay, this topic is very important from the exam point of view क्योंकि ये exam में आता ही है. हर बार आप देखेंगे थ्योरी में ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इसको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन को पूछ लिया, या फिर इन द ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन मिक्स टुगेदर पूछ लिया, या फिर आपको सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा दैट व्हाट आर द वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, एंड बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स यू हैव टू राइट डाउन डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने नंबर्स हैं. अगर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं तो मिनिमम 6 कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने होंगे, और कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन दोनों पूछ लिए गए हैं तो एटलीस्ट 3 तो लिखिए दोनों, राइट? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ध्यान रखकर इस चैप्टर को पढ़ना है, बिकॉज थ्योरी अकाउंट्स में बहुत ज्यादा नहीं है. आप देख रहे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा है, ये मेजर थ्योरी है इस पूरी बुक की. अगर आपको ये आती है तो आपका लगभग आप मान के चलिए कि almost 70 to 80% of the theoretical concepts are covered, which are going to be asked in the paper. Okay, so let's move on to the first concept that we have. The first concept is going concern concept. मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जब भी शुरू किया जाता है उसको पहली बात तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, ये हम सब जान चुके हैं. Businessman is a natural entity and business is a legal entity. Now, when the businessman is starting the business,
he is starting it for the purpose of not dissolving it. That means वो बंद करने के लिए business को शुरू नहीं करता है. तो जब आप business को शुरू कर रहे हैं और आप कई सारे सालों तक उस business को run करने वाले हैं, so how will we come to know that whatever business that we are doing, it is actually delivering the profitable results or not? तो वो profit जानने के लिए हमने जो accounts में जो हम accounts prepare करते हैं, उसको हम सारे अकाउंट्स को डिवाइड कर देते हैं एक एक साल के पीरियड में, जो कि हमारा कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसमें ये कहता है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस, इट इज स्टार्टेड विद एन अजम्पशन दैट इट विल गो ऑन फॉर एवर, राइट. दैट मीन्स जो भी हम असेट्स खरीद रहे हैं या जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, हम इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहे कि उसे बंद करना है, बल्कि हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज वी आर हेयर टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, and that very long period cannot be determined in number of years, right? Till the time it is actually not getting dissolved, जब तक business actually बंद नहीं हो जाता, हम ये नहीं बता सकते हैं कि business की life कितनी है, right? तो जब आप उसको शुरू करेंगे business को, ये सोच कर, इस सोच के साथ शुरू कीजिए कि business बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और आप इसे चलाएंगे, right? और profitably चलाएंगे. Okay, okay. So let's read it. As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period of time in future. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it's a continuing enterprise. It is on this concept that we record fixed asset at the original cost, and depreciation is charged on the asset without reference to the market value. जो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं that fixed asset is recorded at the original cost, और उसके अंदर से हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं. तो ये बेसिकली सिर्फ यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज नहीं होता है, इसके अंदर आप यूज करते हैं अपना एक और कॉन्सेप्ट which is called your historical cost concept. Okay, I have just received a doubt. Let me just solve this for Tejas and for everybody else who has the same doubt. Ma'am, in accounts, business and businessman are considered as separate, but in business study we have studied that business and businessman are not considered as a separate party. Why? I'll tell you. I'll give you the reason for this. Tejas, आपने अभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो आपका शायद सेकेंड या थर्ड चैप्टर है वो नहीं पढ़ा होगा. उसके अंदर आपको लगभग 5 फॉर्म्स पढ़ने हैं बिजनेस के. उसमें आप देखेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही पार्टी होती है, मतलब उनको अलग अलग अज्यूम नहीं किया जाता है. मगर जब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो वहां पे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है. और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो भी फंड्स बिजनेस, अच्छा एक बात बताओ, अगर बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है तो जो फंड्स बिजनेसमैन लगा रहा है उसको हम कैपिटल कहते हैं, ये हमको बात पता है. ओके, तो कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे क्यों दिखाया जाता है? उसे तो एसेट दिखाना चाहिए ना, क्योंकि तो वो तो बिजनेसमैन का पैसा है और बिजनेसमैन एक इंटरनल पार्टी है. तो अगर वो इंटरनल पार्टी है तो जो भी वो पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, वो तो उसके लिए एसेट हो जाना चाहिए, राइट. मगर अगर बिजनेस, जो आपका बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ये प्रिंसिपल, इस कॉन्सेप्ट पे हम वर्क कर रहे हैं. इसी वजह से आप देखिए कि बिजनेसमैन इंटरनल पार्टी तो है, फिर भी वो जो भी पैसा लेकर आता है उसको ट्रीट किया जाता है एज द एज कैपिटल एंड इट इज कवर्ड अंडर द हेड ऑफ लायबिलिटी. मतलब वो कैपिटल जो है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी मानी जाती है और असेट नहीं माना जाता. ओके, आई होप दिस इज क्लियर तेजस, कि बिजनेसमैन अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस के साथ एक कंबाइंड एंटिटी में भी ट्रीट किया गया है. जैसे हम बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक ही पर्सन शुरू करता है, ही इज द होल एंड सोल ऑफ द बिजनेस. तो ही इज द वन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस एंड ही इज इन वन कॉम्बिनेशन, इन वन एंटिटी विद बिजनेस. कोई अलग अलग एंटिटी नहीं होती. मगर जब हम बात करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो वहां पे हमारी बिजनेस और बिजनेसमैन की एंटिटी अलग अलग हो जाती है. ओके, नेक्स्ट नियति, आपने क्वेश्चन पूछा है मैम, इन दिस मैम, दिस इज फ्रॉम द सेकंड चैप्टर. इफ कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी, देन व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नेट एसेट. ओके बच्चे, मैं आपको अभी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. अभी मुझे पता नहीं है कि आप कितना समझ पाएंगे, पर मैं कोशिश करती हूँ आपको समझ में आए इस बात का. जब हमने बिजनेस में पैसा, जब बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में,
तो वो बिजनेस की बनी इंटरनल लाइबिलिटी और उसे कहा गया कैपिटल। ओके, जब हम जो नेट एसेट्स होते हैं ना, नेट एसेट्स बेसिकली कैपिटल को नहीं बोला जाता है। नेट एसेट्स का मतलब होता है कि जब फिक्स्ड एसेट्स जो है, आपके फिक्स्ड एसेट्स में से आपके डेप्रिसिएशन माना जाता है, तो एक तो उसे कहा जाता है नेट फिक्स्ड एसेट। और जब नेट एसेट्स की बात की जाती है तो एवरीथिंग, मतलब ऑल द एसेट्स दैट यू हैव ऑन द बैलेंस शीट, जब आप उसमें से अपनी करंट लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, so whatever that you have is called the net asset। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एसेट का बैलेंस बचेगा इट विल बी इक्वल टू कैपिटल बैलेंस। ओके, आप सबको याद होगा बैलेंस शीट का इक्वेशन क्या था। बैलेंस शीट का इक्वेशन था एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि कैपिटल का क्या फॉर्मूला बना। कैपिटल का फॉर्मूला बना एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ से लाइबिलिटी रिड्यूस कर दूं, मतलब लाइबिलिटी बिल्कुल ही रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो क्या कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट नहीं बन जाता। तो इसीलिए कैपिटल को कई बार आप देखेंगे नेट एसेट भी लिखा जाता है। इसका मतलब है कि टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स दैट वी हैव व्हिच इज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, उसमें से आपके पास जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जो कि एक्सटर्नल पार्टीज को बिलोंग करती हैं, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई, चाहे लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, या फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई, फिर चाहे वो आपके पास क्रेडिटर है या बैंक ओवरड्राफ्ट है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिस भी तरह की करंट लाइबिलिटीज है वो सब आप लीजिए और सबको एसेट्स में से माइनस कर दीजिए। तो जो बचेगा एसेट का बैलेंस वो क्या कहलाएगा, इट विल बी इक्वल टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल। That is why it is also treated as net asset. That means capital is equals to net asset, and net asset means assets minus liabilities. ओके, आई होप नियति बच्चे ये आपको समझ में आया है अभी कुछ। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, आई विल बी शोइंग इट ऑन द बोर्ड और एक्सप्लेनिंग इट अगेन। मुझे अभी बताइए, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड एंड आई एम हैप्पी दैट यू पीपल आर रीडिंग द बुक वेरी केयरफुली। तो अभी आप मुझे कंफर्म कीजिए दैट इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल और नॉट। If this is not clear, I'll show it on board how are we doing it and why is it treated as net asset, why is capital treated as net asset. Okay, Aditi ने लिखा है कि उसको समझ में नहीं आया। Okay, so let's move on to the board. Okay, just give me few seconds, I'll connect you with board. Okay everyone, so the board is visible, let's solve it. ओके, नियति का क्वेश्चन क्या है मैं फिर से बता रही हूँ एक बार सबको। तेजस बच्चे, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। आपका जो डाउट था कि कैपिटल जब आपकी लाइबिलिटी है और बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग क्यों ट्रीट किए जाते हैं, आई होप योर डाउट इज क्लियर। तो तेजस का मैं डाउट फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ इन केस इफ देयर इज एनी डाउट। तेजस का डाउट है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बिजनेस स्टडीज के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि एक ही एंटिटी होते हैं, मगर अकाउंट्स कहता है कि वो अलग अलग एंटिटी होते हैं। तो एक्चुअली क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, वहां पर बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होते हैं, उनको अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता है। इनफैक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो वो भी इस फॉर्मेट को फॉलो करके, डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करके नहीं बनाए जाते हैं। दे यूज सिंगल एंट्री बिकॉज दे आर स्मॉल ट्रेडर्स, राइट, एंड दैट इज व्हाई दे यूज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। उसको हम और डिटेल चैप्टर के अंदर, मगर फिलहाल हमको बस इतना समझना है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जो भी अकाउंट्स हम बना रहे हैं, it is always going to treat business and businessman as two different individual, because whatever that we are recording is going to be whatever amount the businessman is investing is going to be treated as capital, and capital is always an internal liability. Okay, अब नियति का एक बार डाउट है जो मैं सबके लिए पढ़ दे रही हूँ जिससे सबको क्लैरिटी हो जाए। इसमें नियति ने पूछा है कि चैप्टर 2 से ही रिलेटेड है, कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी, देन व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नेट एसेट्स। ओके, लेट मी शो इट टू यू। हम सबने बैलेंस शीट इक्वेशन पढ़ी थी। बैलेंस शीट इक्वेशन सेज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके,
यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो हमारे पास है प्लस करंट लाइबिलिटी, सब मिलाकर जितनी भी लाइबिलिटीज आती है बैलेंस शीट में वो सब इसके अंदर है कैपिटल, एंड दिस इज एक्सटर्नल इन नेचर, ये हम सबको पता होना चाहिए. Capital is an internal liability which has been contributed by the owner, right? इसका सोर्स क्या है, ओनर, और इसका क्या सोर्स है, इसके सोर्स है आपके आउटसाइडर्स. ना आउटसाइडर्स कैन बी एनीबडी, इट कैन बी, ओके, just give me a second. Okay, Anushri, I hope the problem is being taken care of. Okay, I hope this is clear to all. यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने, और सभी को visible भी है साफ साफ. Assets is equals to liability plus capital. Liability, we are talking about the long-term liability plus current liability. This entire liability is considered as an external liability. Capital on the other hand is an internal liability. और internal liability के source कहाँ से आ रहा है, ये amount ये आ रहा है हमारे ओनर के पास से, और ये जो हमारा अमाउंट है एक्सटर्नल लाइबिलिटी का ये हमको आउटसाइडर्स प्रोवाइड करते हैं. सो आउटसाइडर्स कैन बी आवर बैंक, आउटसाइडर्स कैन बी आवर जनरल पब्लिक, एनीबडी, राइट. अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन दी है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन. बैलेंस शीट इक्वेशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो उसपे एक साइड एसेट आता है और दूसरी साइड लाइबिलिटी और कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है, और जब हम इसे टोटल करते हैं तो टोटल ऑटोमेटिकली मैच किया जाएगा, मैच हो जाएगा, एंड दैट शोज आवर अरिथमेटिक एक्यूरेसी. दैट मींस अगर हमने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये मैच करेंगे दोनों साइड. ओके, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया है. ओके, नो डाउट. अब आगे बढ़ते हैं. अब नियति का सवाल आता है कि कैपिटल को नेट एसेट्स क्यों कहा गया. अगर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है तो कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या हुआ, सब मैच पढ़ के आए, सबको साइन रिवर्स करना आता है. ओके, आई एम अज्यूमिंग दिस, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. ओके, तो अगर मैं ये लाइबिलिटी पूरी की पूरी हटा दूं, इसको जीरो कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, पे ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए मतलब आपने सारी की सारी जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी वो पूरी की पूरी अगर आपने पे ऑफ कर दी, so what is going to be left, you'll be left with capital is equals to assets. So can we call it net assets? Net assets because this is capital minus liability. So net assets का फॉर्मूला होता है आपका assets minus liability which is external liability. तो ये नेट एसेट क्या हुआ, ये हुआ कैपिटल. क्या अब ये बात समझ में आई? एनीबडी हु इज स्टिल नॉट क्लियर प्लीज आस्क, राइट. दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन दैट नियति हैज रेज्ड. अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया है तो अभी फिर से पूछिए, और अगर समझ में आ गया है तो हम अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं. एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस? यस क्लास, is this clear everyone? ओके, खुशी ने लिखा है उसको समझ में आ गया. सो आई एम टेकिंग इट एज कि सबको समझ में आ गया. नियति आपको समझ में आया है बच्चे? ये अनुश्री ने लिखा है प्लीज एक्सप्लेन कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट एसेट. अभी मैंने क्या बताया अनुश्री, आप मुझे बताएंगे? मैंने आपको यही बताया कि कैपिटल, ये जो इक्वेशन है इसको रिवर्स कीजिए. रिवर्स कीजिए मतलब ये असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटी. और अगर असेट्स माइनस लाइबिलिटी है तो असेट में से जब लाइबिलिटी आप माइनस कर देते हैं, यानी कि असेट जो टोटल असेट है आपके पास अवेलेबल, जब आप उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो जो फिगर आपके पास आता है उसे कहा जाता है नेट एसेट. तो वो नेट एसेट जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, कैपिटल के इक्वल नहीं हो रहा. तो अगर कैपिटल के इक्वल हो रहा है तो कैपिटल को आप नेट एसेट्स भी तो कह सकते हैं उस केस में, राइट.
तो अगर मैं यहाँ से लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन पे ऑफ कर दूंगी तो वट एवर एसेट दैट विल बी रिमेनिंग विद मी इज कॉल्ड नेट एसेट, और उसका जो बैलेंस होगा जो आपके एसेट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा और जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो दोनों एक बराबर हो जाएगा, इसीलिए कैपिटल को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके अनुश्री, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। ओके नियति, ग्रेट, यू हैव गॉट अ वंडरफुल पॉइंट एंड ये क्लास में डिस्कस हो गया, बहुत अच्छी बात है ये, और उससे भी अच्छी बात है कि बच्चों को समझ में आ गया। ओके so we have understood going concern concept. Going concern concept says that we are making an account and we are taking it as that the business will go on forever, right? This is what the going concern concept says. इसको आप और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी हम इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करते हैं। ओके सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी देखिए, मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए भी कह रही हूँ, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग, मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप, जैसे अभी नियति ने ये डाउट निकाला ना, या फिर कोई और बच्चा निकालता है कोई भी डाउट किसी चीज में से, तो इसलिए डाउट आता है क्योंकि आपने उसको रीड किया है। जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको डाउट्स नहीं आएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड इट, यू अंडरस्टैंड इट वेरी मच इन डिटेल्स। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपके डाउट्स बिल्कुल सॉल्व करूंगी द वे वी हैव सॉल्व्ड इट जस्ट नाउ, राइट? तो अभी मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हमारे पास अभी कर सकते हैं हम आज, उसे समझा देती हूँ, और आज आप वो ही सारे जाके कॉन्सेप्ट्स घर पे वापस पढ़ेंगे और उसको कल बताए, कल पूछेंगे अगर कोई डाउट रहा तो। Okay, so I hope going concern concepts is clear. Going concern concept says that the business is started with an assumption that it will continue for a longer period of time, and because of that we are recording our assets using the purchase price minus depreciation of every year, and we are not taking into consideration the market price, because हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने एसेट खरीदा है तो वो तो रहेगा ना हमारे पास, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो नहीं रहा, बिजनेस तो चल ही रहा है। अब बिजनेस चल रहा है तो एसेट्स भी हमारे पास ही रहेंगे, राइट? सो देयर इज नो not going to be any changes, and the business will run and it will keep on earning profits for the years to come. Okay, नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसी से स्टिक कीजिए और हर साल उसको मत बदलिए, राइट? तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, राइट? जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, राइट? तो हर मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे अमाउंट अलग अलग आएगा, हालांकि अमाउंट जो अलग आएगा उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होगा, पर फिर भी अमाउंट के अलग आने की वजह से प्रॉफिट फिगर हर बार बदल जाएगा, राइट? तो इसीलिए बताया जाता है कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसको बहुत जरूरी है कि हम कंसिस्टेंट मेथड फॉलो करें, एक ही मेथड को ओवर एंड ओवर ईयर अगेन फॉलो करें, जिससे कि जो भी हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट मींस व्हाटएवर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग एंड बैलेंस शीट दैट वी आर प्रिपेयरिंग ईच ईयर, हम उसको अपने पिछले सालों के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट? और कंपैरिजन से हम क्या ड्रॉ करेंगे? कंपैरिजन से हम ड्रॉ करेंगे रिजल्ट कि बेसिकली जो भी बिजनेस ने परफॉर्म किए ऑपरेशंस, उससे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट? तो ये एक्चुअली प्रोग्रेस जानना या आपका प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है ये जानना, ये जानने के लिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने अकाउंट्स को बनाने के मेथड्स में। इफ यू आर चेंजिंग योर मेथड्स एवरी नाउ एंड देन द रिजल्ट्स will become different every year and it will simultaneously become incomparable. Okay, I hope this is clear. Next method is accrual concept. Accrual concept का मतलब क्या होता है कि हमारे पास accrual concept समझाने के लिए मैं आपको दो concept समझाती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड के तरफ लेके चलती हूँ। Okay, let's come back to board again. I hope जो concept हमने अभी पढ़े वो सबको समझ में आ गए हैं। Accrual concept समझते हैं, क्या कहता है accrual concept? पहले तो ये समझे कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं कौन से हमारे पास। We have got two concepts available, या फिर इसको बेसिस भी बोला जाता है बहुत बार। ओके, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक हमारे पास होता है कैश बेसिस
दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। ये अक्रूवल बेसिस अगर आपने समझ लिया यहाँ से, तो ये अक्रूवल बेसिस ही आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ओके, अब समझते हैं ये कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस कह क्या रहा है। ओके, सो कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, सो व्हाई आर वी डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग इट सो दैट वी कैन, ओके, अंजलि ने रिक्वेस्ट की है कि लाइट आ रही है बोर्ड पे। ओके, देन लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द लाइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, I hope this is much more clear now. Okay, so कैश बेसिस, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस को समझाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, हम वो बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट्स जानने के लिए, कि बेसिकली हमने पूरे साल जो कुछ भी ऑपरेशंस रन किए हैं, उसको रन करने से हमको प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट वी वांट टू नो? नथिंग, राइट? प्रॉफिट या लॉस, यही फाइंड आउट करना है हमको। अब जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हम बना भी रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग इट? टू डिटरमाइन whether we have generated profit or we have incurred loss, right? I hope this is clear to everybody. तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं? इनकम माइनस expense, which we also call as cost. Okay, so जितनी आपके पास इनकम आई है, टोटल टोटल रिसीट्स है जो आपकी, राइट? चाहे वो सेल्स के थ्रू आई हो या इनकम भी नहीं मैं कहूँ लिखूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगी आपकी रिसीट्स, रिसीट्स। अब फिर वो चाहे सेल्स प्रोसीड हो या फिर कोई भी और रिसीट हो, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एनीथिंग दैट वी आर रिसीविंग इज गोइंग टू बी एडेड। और जो भी हमने पे किया है, जो एक्सपेंस है हमारा, जो कि सम टोटल में कहा जाता है इसको कॉस्ट, उसको हम माइनस करेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सबको पता है कि जो भी आपको इनकम होती है, जो भी आपको रिसीव होता है, वो सब जब हम टोटल करते हैं तो आपका वो बताता है कि एक्सपेंस से माइनस करके अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से, तो आपके पास प्रॉफिट है, और रेवेन्यू अगर कम है आपके एक्सपेंसेस से, तो आपको लॉस होता है। ओके, ये चीज हमको पता है। अब कैश बेसिस क्या कहता है? यहाँ पर कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का रोल आता है। कैश बेसिस कहता है कि हमारे पास अलग अलग साल है। अभी ये 2020 चल रहा है, इसके बाद आएगा 2021, और इससे पहले आया 2019। ये कहलाता है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है मेरा करंट ईयर, और ये है मेरा फॉलोइंग ईयर, राइट? जिसको हम नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, राइट? तो अब जो ये मेरे पास ये ईयर्स हैं, राइट? समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी इनकम, ये मैं बात कर रही हूँ अब कैश बेसिस की, कि जो भी इनकम मुझे रिसीव हुआ, चाहे वो पिछले साल से रिलेट कर रहा था या फिर वो आने वाले साल से रिलेट कर रहा है या वो इस साल से रिलेट कर रहा है, अगर मुझे कुछ भी रिसीव हुआ है तो आप उसे ऐड कर लीजिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई एम रिपीटिंग। कैश बेसिस सेज कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको रिसीट है, जो भी आपको सब रिसीव हुआ है, उसमें से आप माइनस कीजिए अपने एक्सपेंसेस को। सो द अमाउंट, इफ द पॉजिटिव, इफ द रिसीट साइड इज ग्रेटर देन द एक्सपेंस साइड, द आंसर इज प्रॉफिट। इफ द एक्सपेंस साइड इज ग्रेटर देन द रिसीट साइड, द आंसर इज लॉस। ओके, यहाँ तक हम सबको क्लैरिटी हो चुकी है। कैश बेसिस यहाँ पे कह रहा है कि अगर मुझे मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मुझे जो मेरी रिसीट्स है वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, इस साल से, करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, किसी भी साल से रिलेटेड हो, मुझे उसे ऐड कर देना है, राइट? सिमिलरली एक्सपेंस जो मैंने पे किए इस साल, भले ही वो किसी भी साल से रिलेटेड थे, पिछले साल से या आने वाले साल से, उसको मुझे माइनस करना है। अगर ये रिसीट्स जो किसी भी साल की है, जो रिसीव हुई है इस साल, और सिमिलरली जो आपकी ये है पेमेंट्स है जो आपने किसी भी साल की थी मगर आपने पे कर दी है इस साल, पे कर दी है फिजिकल कैश में,
Using that, if the answer is, if the receipts are exceeding the expenses, your answer is profit. Okay. और इसका उल्टा accrual basis क्या कहता है? Accrual basis कहता है कि हम जो भी हमारे expenses होते हैं और जो भी हमारी income होती है जो इस साल से relate कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को consider करेंगे. That means cash basis is not taking into consideration the year concept, right? वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो भी कैश में रिसीव हो गया उसको ऐड कर लो, जो भी कैश में पे कर दिया उसे माइनस कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर कि वो किस साल का है, इस साल का, पिछले साल का, आने वाले साल का, डजंट मैटर इन केस ऑफ कैश बेसिस, राइट. वेयर एज इन केस ऑफ अक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि हम वो सारे एक्सपेंसेस काउंट करेंगे जो इस साल से रिलेट कर रहे थे, फिर चाहे वो मेरे पेड है या आउटस्टैंडिंग है, राइट, दोनों चीजें. सिमिलरली अगर मेरे पास रिसीट्स है तो वो रिसीट्स भी मेरी इसी साल की होनी चाहिए, यानी कि वो सारी मेरी इनकम जो इस साल अक्रू हो रही है, जो इस साल अराइज हो रही है, आप सिर्फ उन्हीं सारे इनकम्स को काउंट करेंगे. तो वो कौन सी इनकम होंगी? वो इनकम जो आपको इस बार रिसीव हो गई या फिर वो इनकम जो आपने इस साल जनरेट कर ली है भले ही आपने रिसीव नहीं की. इन बोथ द केसेस आप सिर्फ इसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम को काउंट करेंगे, तो वो कहलाता है मेरा अक्रूवल बेसिस. कैश बेसिस के अंदर वी काउंट एवरीथिंग वेदर इट इज रिलेटेड टू दिस ईयर और नॉट. ये होता है कैश एंड अक्रूवल बेसिस. अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी इसी बारे में बात करता है that every expense that has arise that has been incurred during this year has to be subtracted. Similarly, any income that has got earned, that you have earned and that has got accrued this year, whether received or not, has to be added. Matching both the concepts, if the difference is profit, I mean if the difference is the receipt side is greater, the answer is profit. और अगर आपका expense side greater है तो आंसर आपका कहलाएगा loss. यही हमारा accrual basis है. accrual concept भी कहता है यही same चीज कि everything that has been incurred or that has got accrued, whether received or not or whether paid or not, it is immaterial. If it is related to this accounting period, it should be taken into consideration for the calculation of profit or loss. और यही चीज जो मैंने आपको बताई, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमने बोर्ड पे किया. इज इट क्लियर और डू वी नीड सम मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस? समझ में आया हमने क्या किया? या किसी को कोई डाउट है अभी भी? प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. Okay, so no doubts as of now. So let's read and let's understand accrual concept. Accrual concept is the accrual base in accounting. Accrual basis is used for recording transaction. It provides more appropriate information about the performance of the business enterprise as compared to cash basis, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, right? मतलब accrual basis के अंदर हम सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे जो कि हमारे इस साल से रिलेट करती हैं, जबकि कैश बेसिस में हम क्या करते हैं? कैश बेसिस के अंदर हम हर वो चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि हमने कैश में रिसीव की या पे की, whether it is related to this year or not, right? तो इसीलिए कहा जाता है कि कैश बेसिस हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देता. आगे चलते हैं. accrual concept applies equally to revenue and expenses. In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered. That means it is immaterial whether cash is received or not. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जिस भाषा में लिखा गया है उसे सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ. It is considered that जो भी आपको receipts है, if it has been earned, whether received or not, will be counted as receipt. Similarly, any payment which has been incurred, whether paid or not, has to be counted under the expenses head, and both are going to be matched for the purpose of determining the profit or loss position of an year, right? So this is what this accrual concept is saying. और accrual concept में जब हम ये matching करते हैं अपने expenses और income की, जो कि इस साल मैंने earn किया या मैंने incur किया, तो वो मेरा कहलाता है matching concept, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे. I hope this is very much clear to all.
अभी ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ तक ही इसको पढ़ा रही हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होता है, we'll do that numerical also, right? मगर फिलहाल के लिए आप, अगर यहाँ तक आपको क्लैरिफाई हो गया है तो इट इज वंडरफुल, और अगर क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो कल हम इसके ऊपर ही एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे और कैश कॉन्सेप्ट पे, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे यूज होता है। ओके, अभी मैं आपको फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ और वो हमारा यहाँ का आज का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, एंड आई वुड एक्सपेक्ट एवरीबडी टू गो बैक एंड रिवाइज ऑल दीज फोर कॉन्सेप्ट्स, और आप ये रिवाइज करेंगे और साथ में ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि जो ये मैंने कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पढ़ाया है आपको, आपको ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि कल हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट? Okay, so business entity concept, the last concept for today, which we are going to discuss is, जो हमने already मैंने आपको बताया कि business entity concept says that business and businessman are two different individual. Business is an artificial entity which is created by law, and businessman is a natural entity which has been created by God. And इसीलिए जो भी funds आपके बिजनेसमैन अपने इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसे कहा जाता है कैपिटल, एंड इट इज ट्रीटेड एज एन इंटरनल लायबिलिटी, एंड whatever funds that we are borrowing from outside is considered as an external liability, right? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बिकॉज whatever capital that the businessman has invested in the business, profit is the return over that investment that business is actually generating over the year, right? और जब भी बिजनेसमैन कुछ भी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज से, तो उसे हम कैपिटल में से ही माइनस करते हैं एज ड्रॉइंग्स, बिकॉज वो बिजनेसमैन का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इसीलिए बिजनेसमैन ने जो भी विड्रॉल्स किए उसका रिडक्शन भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, which is called capital, and that is why drawing is deducted out of capital. Okay, so this is business entity concept. इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, मगर कल बात करने से पहले यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। ये गलत लिखी हुई है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज वन, यही बिजनेस स्टडीज की बुक भी कहेगी, यहाँ पर ये गलती है, राइट? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन इट। ओके, so that would be all for today. Thank you everyone. So now we'll meet tomorrow. Any doubts, anything else, we'll be taking it up tomorrow in tomorrow's session. Thank you everyone.